हालेलुया। तारीफ तारीफ तारीफ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਇਬਾਦਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੁਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਰਾਧਨਾ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ 'ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸ਼ਤਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਦਾਸ ਪਰ ਸੰਜੇ ਜੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾओं के राजा। ਗਲੋਰੀ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਲੈਸਲੀ ਸਲਾਹ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਅਜੀਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾओं के राजा। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਸ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਲਹੂ 'ਚ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਪਾਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਬੰਧਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਰਾਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਣਾ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਿਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਦਇਆ ਭਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀਏ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ 16 ਨੰਬਰ ਵਚਨ। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16वां वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ? हाँ जी, हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। और जो यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से तुम मांगो तो आपको वो दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस करके प्रभु ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਚਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਹਲ ਜੋਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, आलसी लोगों को खुदावंद नहीं चुनता। हालेलुया। और गिदोन की बात करते हैं, गिदोन जो है वो भी काम कर रहा था, वो गेहूं को क्या कर रहा था? साफ कर रहा था, वो भी काम कर रहा था। हालेलुया। तो जो खुदा के लिए हाजिर है उनको खुदावंद अपने लिए चुनता है। सैमुएल की बात करते हैं, सैमुएल जो है वो खुदा के लिए जाग रहा है, नींद को छोड़ा है, खुदा के लिए वो जाग रहा है। खुदावंद उससे बात करता है। जो एली साथ में सोया है उससे खुदावंद ने बात नहीं किया। हालेलुया। एली से बात नहीं किया क्योंकि खुदावंद उनसे बात करता है जो उनके लिए हाजिर होंगे। हालेलुया। जो उनके लिए उपस्थित होंगे उनसे परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। तो खुदा के कलाम से हमने सीखना है, खुदा के लिए हम उपस्थित रहें, हाजिर रहें खुदा के लिए, तब खुदाबंद हमको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, हम सिखाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ें। अगर अखबार की तरह हम पढ़ेंगे या उसको पूरा करेंगे तो वो समझ भी नहीं आएगा और वो हमारे जीवन में काम भी नहीं करेगा। जब उसको सीखने के लहजे से हम पढ़ेंगे बाइबल को तो खुदाबंद हमसे बात करेगा और जब वो प्रचार किया जाएगा ना फिर दूसरों के ऊपर भी उनका प्रभाव होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल, एक बात और, बाइबल को जितनी बार भी पढ़ेंगे आप, जितनी बार भी पढ़ेंगे, वचन को बार बार भी पढ़ेंगे, हर बार आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। हालेलुया। कोई बुक आप पढ़ेंगे और एक बार पढ़ देंगे छोड़ देंगे, लेकिन जब बाइबल आप पढ़ेंगे,
बाइबल में से हर बार एक नई बात सामने आएगी निकल के सीखने के लिए। हालेलुया। तो बाइबल जो है पूरे संसार में सबसे ज्यादा छपने वाली, सबसे ज्यादा बिकने वाली ये बाइबल है। और बाइबल जो है हर एक धर्म के जो लोग हैं वो पढ़ते हैं इससे, प्रभु को नहीं भी मानते तो भी पढ़ते हैं। वो सीखते हैं, इससे सीखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो लोग मसीह की ओर आ रहे हैं, मसीह की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो क्योंकि ये खुदा का दिया हुआ कलाम है। हालेलुया। इसलिए तो तीमुथियुस की पत्री में हम देखेंगे, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय, जो खास करके सेवकों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, और आप सभी लोग जितने सेवक हैं जानते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया है। और इसमें हमने खास बात क्या देखना है, 3 अध्याय पहला तीमुथियुस 4 वचन पढ़े। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हम्म जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। हाँ, सेवकाई के लिए हम सेवकाई के बारे में बात करेंगे, जो भी आज का जो मैसेज हमारा होगा। जो एक सेवक है जिसको परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए अलग करता है, एक सेवक को क्या करना है, सबसे पहले अपने घर का अच्छे से प्रबंध करना है। बाइबल बताती है अगर कोई सेवक सेवकाई करे, अपने घर का प्रबंध अच्छे से ना कर पाए, तो कलीसिया की भी वो अच्छे से रखवाली नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो शुरुआत कहां से होगी? घर से। जो सेवा है ना, सेवा घर से ही वो स्टार्ट होती है। और बाइबल हमें बताती है कि सबसे पहले घर का जो प्रबंध है अच्छे से हमने करना है। सेवक लोगों ने बच्चे की फीस देनी है, उसका ध्यान रखना है। आपने कुछ दिन के लिए उपवास में जाना है, तो घर का जो भी राशन है, प्रबंध है, उस सब पहले करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हालेलुया। और एक बात और याद रखना, सबसे पहले है परमेश्वर हमारे लिए, सबसे पहले परमेश्वर। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? हमारा परिवार, हमारा परिवार। तीसरे नंबर पे आएगी हमारी सेवा। हालेलुया। अगर हम पहले नंबर पे परमेश्वर को लेकर के दूसरे नंबर पे सेवा को ले आएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि कलीसिया कभी भी आपको छोड़ सकती है, आपका परिवार आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका परिवार आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है अच्छे से घर का अपना प्रबंध करना है, फिर सेवकाई। अगर अच्छे से घर नहीं चला सकते तो कलीसिया भी नहीं चला सकते। हालेलुया। इसलिए पहले नंबर पे परमेश्वर को रखना है, दूसरे नंबर पे परिवार, तीसरे नंबर पे सेवा, सेवकाई का कार्य। मेरा कहने का मतलब है अगर हम दूसरे नंबर पे सेवकाई को लेते हैं, मीटिंग बहुत जरूरी है,
टाइम दिया हुआ है, जाना है, प्रचार करना है। तो घर में अगर कोई बीमार है, पत्नी, बच्चे, कोई भी बीमार है, कि आप छोड़ के चले जाओगे? जाओगे भी तो मन पीछे ही रहेगा, घर पे ही रहेगा, अच्छे से सेवकाई का काम पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस ये बता रहे हैं कि पहले घर का अच्छे से प्रबंध किया जाए, फिर सेवकाई का कार्य अच्छे से कर पाएंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है, तब हम सफल हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब इससे इससे इस तरीके से हम चलेंगे ना, तो फिर हम सफल हो पाएंगे। हालेलुया। और जो काम हमको दिया गया है, जो बुलाहट हमारी हुई है यीशु मसीह की तरफ से, जिस काम के लिए खुदाबंद ने हमको बुलाया, दर्शन दिया है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे तो सफल होंगे। अगर हम एक दूसरे की तरफ देखेंगे, उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे, तो अपना निशाना भूल जाएंगे। हालेलुया। जो खुदावन ने काम हमको दिया है, जो काम मेरे को दिया है, मैं दूसरे की ओर देख करके चलूंगा तो मैं अपना निशाना भूल जाऊंगा। हालेलुया। और आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है। इसलिए यीशु मसीह कहेगा, मैं तेरे को नहीं जानता। जब यीशु मसीह के सामने जाएंगे ना, तो कहेगा मैं तेरे को नहीं जानता, क्योंकि तूने मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया। हालेलुया। इस करके यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जब काम करेंगे, और फिर खुदा से प्रतिफल पाएंगे। तीतुस की पत्री, उसका पहला अध्याय 6 नंबर वचन, यहां लिखा है, जो निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो, जिनके लड़के वाले विश्वासी हों, और जिन्हें लुचपन और निरकुंशता का दोष नहीं। हाँ, इसका क्या मतलब है? मतलब सिर्फ सेवक को ही सेवकाई नहीं करना। सेवक के, जब एक सेवक की बुलाहट होती है ना, तो उसका परिवार भी उसमें जुड़ जाता है, पत्नी, बच्चे भी। परिवार का भी उसमें चलना जरूरी है। सेवक का जीवन कैसा होना चाहिए, बाइबल हमें सिखाती है कैसे कैसे एक सेवक का जीवन होना चाहिए। और यहां बताया गया है तीतुस में, उसके बच्चों का जीवन भी सही और पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। उसके बच्चों का चाल चलन भी बाइबल के मुताबिक होना चाहिए। और एक सेवक जो है, अपने बच्चों को भी अपने गंभीरता से वश में रखने वाला हो। हालेलुया। अगर एक सेवक सेवकाई करता है, अगर उसके बच्चे उसके अनुसार नहीं चलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो वो सेवक कामयाब सेवक नहीं होगा, अच्छे से अच्छे ढंग से वो सेवकाई नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए जब हम सेवकाई में आते हैं, बच्चों को भी सिखाना है, बच्चों को कैसे पवित्र जीवन जीना है, कैसे संसार में नहीं खोना है, खुदा के अनुसार कैसे जीवन जीना, बाइबल को पढ़ना, प्रेयर करना है, उनको भी सिखाना है। हालेलुया। सेवक का जीवन भी पवित्र होना चाहिए, उसके बच्चों का जीवन भी पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। ताकि उसके ऊपर कोई दोष ना लग सके, दूसरे लोग बातें ना करें उनके परिवार के लिए। हालेलुया। और इसी में 3 नंबर अध्याय 2 नंबर वचन, तीतस तीसरा अध्याय उसका 2 नंबर वचन, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। हाँ, एक सेवक को कैसा होना है? कोमलता से बर्ताव करना है, झगड़ालू नहीं होना चाहिए,
बात बात पे गुस्से नहीं हो जाना चाहिए, छोटी छोटी बात पे गुस्से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है किसी की बदनामी ना करें। हालेलुया। एक सेवक, जो एक अच्छा सेवक है खुदा का, वो एक दूसरे की बदनामी नहीं करेगा। हालेलुया। अगर करेगा तो कलीसिया टूट जाएगी। हालेलुया। एक विश्वासी की बात दूसरे विश्वासी से नहीं करना, एक परिवार की बात दूसरे परिवार के साथ नहीं बांटना, उसके घर में क्या चल रहा है उसको नहीं बताना, उसके घर में क्या हो रहा है, उसने किस लिए प्रेयर करवाया, क्या क्या चल रहा है, वो दूसरे को नहीं बताना, सीक्रेट होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कलीसिया बढ़ेगी, कलीसिया में प्रेम बढ़ेगा, कलीसिया उन्नति करेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको किसी की बात सुन के उसको आगे नहीं करना। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, तभी कलीसिया जो है वो बनी रहेगी और बढ़ेगी भी। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात और, जब सेवक लोग, खास करके जो पुरुष है, पास्टर है, किसी के घर में जाते हैं विजिट करने, जहां औरत अकेली है वहां आपने अकेले नहीं जाना। सभी सेवकों से मैं कह रहा हूं, पास्टर लोगों से, जिस घर में औरत अकेली है वहां आपने अकेले नहीं जाना, अपनी पत्नी के साथ जाना। हालेलुया। पत्नी के साथ जाओगे, अच्छा रहेगा, सेवकाई अच्छे से कर पाओगे। बहुत ध्यान से हमको चलना है, शैतान निशाने लगाए रखता है। हालेलुया। काफी साल पहले की बात है कि एक अखबार में भी आया था, मसीह संसार जो अखबार है, वो एक बहन प्रेयर करवाने के लिए गई पास्टर के पास, बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, है ना, फिर ये किया वो किया, ये बड़ी बड़ी बातें होती है। इसलिए या तो अपने साथ किसी और को, 2-3 जने जाओ, या फिर अपनी पत्नी को साथ लेकर जाओ, नहीं तो ना जाओ। हालेलुया। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए सतर्क रहना है हमको, चौकस होना है, और हर बात में हमको सब्र करना है। हर बात बोलना जरूरी नहीं है, इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, इसकी बात उससे बोलना जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा रहेगा। हालेलुया। और दूसरा तिमोथियस 4 नंबर अध्याय 9 से पढ़ेंगे 13 तक। एक सेवक का जीवन ऐसा होना चाहिए, दूसरे लोग आपके ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। एक सेवक का जीवन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे आपकी बात के ऊपर विश्वास करें। एक सेवक को ठट्ठा मजाक करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर एक सेवक ठट्ठा मजाक करेगा तो दूसरे उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ा सतर्क रहना है हमको, बड़ा चौकसी से हमको चलना है। तो दूसरा तिमोथियस 4 नंबर अध्याय 9 नंबर वचन से पढ़ेंगे। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, संत पौलुस कह रहा है तिमोथियस को, मेरे पास शीघ्र आने का यत्न कर। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझको छोड़ दिया है। हाँ, संत पौलुस बता रहे हैं, तिमोथियस को लिख रहे हैं कि दिमास उसका साथी है, उसके साथ सेवकाई में वो कार्य कर रहा है। दिमास ने इस संसार से प्रेम करते हुए मेरे को छोड़ दिया। पौलुस
बता रहे अपने तीमुथियुस को कि दीमास ने इस संसार में प्रेम लगा लिया, मन लगा लिया, संसार से प्रेम लगा लिया और मेरे को छोड़ दिया। और थिस्सलुनीको को हम्म चला गया है और क्रेंकास गलातियों को और तीतुस दलमितिया को चला गया है। हाँ, मतलब सभी अपना अपना रास्ता ले लिया। दिमास भी और तीतुस भी और तीसरा भी अपने अपने रास्ता ले लिया। हो सकता है सेवकाई में उनकी जरूरतें पूरी ना होती हो, सेवकाई में उनको परेशानी होती हो, भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, सफर में जाना पड़े, कुछ भी कमियां रह सकती है। तो इसमें हम देखते हैं संत पौलुस कह रहे हैं तीमुथियुस को कि दिमास ने इस संसार में अपना मन लगा लिया है और मेरे को छोड़ दिया है। कुछ लोग आपको भी छोड़ सकते हैं, जैसे हमने पहले भी सुना है। मेरे को ये बात नहीं पता था लेकिन अभी पता चला, कुछ लोग आपको भी छोड़ सकते हैं। निराश नहीं होना। हालेलुया, निराश नहीं होना। आगे क्या लिखा है? केवल लूका मेरे साथ है। केवल लूका ही मेरे साथ रह गया है, एक व्यक्ति। क्योंकि जो पौलुस है वो बहुत से लोगों से मिलकर के वो सेवकाई का कार्य करते थे। जैसे प्रभु के दास संजय जी हैं, वो सभी दासों से मिलकर के सेवकाई का कार्य जो है वो कर रहे हैं। हालेलुया। तो पौलुस जो है वो बहुत से सेवकों के साथ मिलकर के, छोटे जवान बच्चे बुजुर्गों के साथ भी वो सेवकाई का काम किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि लूका क्या था? लूका एक वैद्य, एक डॉक्टर था। उसने मसीह की चर्चा सुनी, मसीह के ऊपर विश्वास किया और वो भी पौलुस के साथ मिल गया सेवकाई में। तो लूका ही मेरे पास अकेला रह गया है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। हाँ, पौलुस कह रहे हैं मरकुस को लेके मेरे पास चला आ, क्योंकि वह मेरे काम का व्यक्ति है। ऐसा क्यों बोला पौलुस ने? क्योंकि कुछ समय पहले जो मरकुस था वो पौलुस से अलग हो गया था सेवकाई के काम में। जहां पौलुस जाना चाहता था वहां मरकुस उनके साथ नहीं गया, तो वहां उनका रास्ता अलग अलग हो गया। अब काफी समय के बाद पौलुस क्या कह रहे हैं? मरकुस को लेके मेरे पास आ, क्योंकि मरकुस मेरे काम का व्यक्ति है। हालेलुया। जैसे बताया गया है पहले भी, एक समा था मरकुस उससे अलग हो गया और एक समा फिर आया। पौलुस, वही पौलुस कह रहा है कि मरकुस को भी साथ में लेके आना। मतलब अगर खुदा की इच्छा है तो फिर परमेश्वर उसको वापस लेके आएगा। हालेलुया। जो आपको छोड़ गया फिर वापस आएगा और खुदावन उसके द्वारा भी अपने सेवा के कार्य को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे संत पौलुस कह रहे हैं कि जो वचन, जिसके ऊपर वचन लिखते थे ना, जैसे अब तो बाइबल है ना हमारे हाथ में, पहले ना वो चमड़े के होते थे पत्थर, उसके ऊपर वचन लिखा जाता था। तो संत पौलुस बता रहे हैं कि ओ वाले जो पत्री है वो भी साथ में लेके आना। देखो पौलुस जो है ना अब बुजुर्ग हो गया, बड़ी उम्र का हो गया, तब भी वो कह रहा है कि वो जो वचन पहले के पत्री लिखे हुए हैं वो साथ में लेके आना। मतलब अब भी उसको वो पढ़ना चाहता है, अब फिर से उसको पढ़ना चाहता है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? हमको भी बाइबल रीड करना है,
हमको भी बाइबल पढ़ना है। बाइबल पढ़ेंगे तब ही हम प्रचार कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक एक इच्छा हमारे जीवन में ये होनी चाहिए कि हमको वचन को पढ़ना है, यत्न करना है, हर रोज पढ़ने के लिए यत्न करना है हमने। एक मीटिंग हुई थी यहाँ दिल्ली में, तो पास्टर रिचर्ड जी है, रिचर्ड हावल जी, 2-3 मीटिंगें उनकी अटेंड की। तो वो पूछते हैं आज आपने बाइबल पढ़ी है? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। सेवकों से पूछा गया कि आज आपने बाइबल पढ़ी है? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। एक मीटिंग इधर हुई थी 3-4 महीने पहले की बात है, नवांशहर में। वहां पूछा उन्होंने, आज आपने बाइबल पढ़ी किसी ने? किसी ने हाथ नहीं उठाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हर रोज बाइबल पढ़नी है। हालेलुया। और बीच बीच में आप कोई ना कोई बुक्स भी पढ़ सकते हैं। मैं भी बीच बीच में कोई ना कोई बुक्स पढ़ता रहता हूं। बुक्स में ज्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो खुदा के सेवक हैं उन्होंने अपना अनुभव उसमें बताया होता है। हम वचन को, बाइबल को भी बुक्स पढ़ने के द्वारा अच्छे से समझ पाते हैं। हालेलुया। जो जो खुदा के दास आत्मिक हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, जो उनकी बुक्स होती है ना, वचन के अकॉर्डिंग होती है, तो उसको पढ़ना बहुत लाजमी है। पंजाब बाइबल कॉलेज के जो एक दूसरे फाउंडर हैं, टी वल्सन अब्राहम, उन्होंने बताया था कि हर महीने आप एक नई बुक्स पढ़ें। एक महीने में वो बुक्स खत्म करें और अगले महीने दूसरी बुक्स शुरू करें, उसको पढ़ें। बहुत जरूरी है। बाइबल के साथ साथ बाइबल को नहीं छोड़ना। हालेलुया। बाइबल तो हमारा आधार है जीवन का, सेवकाई का। तो हमको बाइबल को भी रीड करना है। बाइबल जरूरी है। जैसे 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय में पहली दूसरी आत्मा में पढ़ते हैं ना हम, तो वहां लिखा है आप भंडारी हैं वचन के, वचन के आप भंडारी हैं। खजाना जिसे बोलते हैं। जैसे नल में पानी डालते हैं ना, एक बार पानी ऊपर आ गया, फिर उसको जितना मर्जी चलाई जाओ। हालेलुया। जब हम अपने में वचन भरेंगे, वचन भरेंगे, पढ़ेंगे, भरेंगे, पढ़ेंगे, भरेंगे, फिर जितना मर्जी आप बोलें, प्रचार करें, तो खुदाबंद मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है बाइबल पढ़ना। हालेलुया। तो जब लोग छोड़ जाएं, निराश मत होना, दुआ करना, परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। कई बार होता है कुछ लोग हमारे से खुदा अलग करता है। कुछ लोग तो होते हैं कि वो हमारे के लिए बरकत का कारण नहीं होते। हालेलुया। कुछ लोग हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए बरकत का, आशीष का कारण नहीं होते, इसलिए खुदाबंद उनको अलग करता है। जहां कई बार कुछ लोगों को परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है, उनको कुछ सिखाना चाहता है, बनाना चाहता है बेहतर, इसलिए उनको अलग करता है परमेश्वर, ताकि जब वो समझ जाएं फिर वो वापस आए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एक लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन में ना एक एक या 2-3 परिवार अ, मेरे से अलग हो गए। वो कह रहे हम इधर ही करेंगे। वो भी हमारे ये वैसे मेरी सेवकाई में से 2 पास्टर हैं, वो भी कलीसिया चला रहे हैं। और वो परिवार कह रहे हैं कि हम इधर ही सेवकाई करेंगे। तो 3 साल निकल गया, 3 साल निकल गया। और उस बहन को एक खुदा के दास ने बताया, आप सही जगह नहीं है। उसने प्रार्थना किया कि खुदाबंद मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। तो उसने बताया कि परमेश्वर ने ना मेरी शक्ल उसको दिखाई। अब ये जो जो दाढ़ी मेरी चिटी हो रही है ना, यहाँ सफेद बाल आ रहे हैं, पहले नहीं थे।
लॉकडाउन के पहले नहीं थे। 3 साल के बाद ये मेरे जो ये यहाँ दाढ़ी है ना, ये चिट्टी होने लगी, सफेद होने लगी। तो उस बहन ने 3 साल बाद खुदा ने उसको दिखलाया, मेरी शक्ल दिखाई, ऐसे माइक फड़ के मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो वो बता रही, पास्टर जी आपके ना यहाँ से ये बाल सफेद हो रहे। तो मैंने सोचा ये तो वो नहीं है। जब 3 साल बाद वो आई, उसने मेरे को देखा, तो वैसा ही सब कुछ। हालेलुया। खुदा ने उनको उनके ऊपर प्रकट किया कि वहां जहां तू पहले थी वहीं जाओ, वहीं तेरे को आशीष मिलेगी। और मैंने उस बहन को बोला था, आपके घर में एक एक चीज नई होगी। तो ऐसा ही हो रहा है, एक एक चीज उसके घर में नई आ रही है, नई आ रही है, नई है, सब कुछ नया नया उसको मिल गया। हालेलुया। तो खुदावंद सब कुछ जानने वाला, आने वाले समय को बताने वाला, सारा कुछ परमेश्वर, सभी को जानने वाला परमेश्वर है। तो सारा कुछ उसके हाथ में है, हमको उसी के अनुसार अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। तो आत्मिक बातों की हमने लालसा करनी है, उसकी खोज में रहना। जैसे लिखा ना, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, है ना। तो जब हम अलीशा की बात करते हैं, अलीशा ने क्या मांगा था? एलिया से 2 गुना अभिषेक, 2 गुना अभिषेक मुझे चाहिए, और ऐसा हुआ भी। उसका आगे सेवक गेहाजी, गेहाजी को तो 4 गुना मांगना चाहिए था, है ना। एलिया ने 2 गुना मांगा, एलीशा ने 2 गुना मांगा, गेहाजी को 4 गुना मांगना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो लालच में आके अपना जीवन खराब कर लिया। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, बाइबल को हमने रोज पढ़ना है, रोज सीखना वचन में से, ताकि हम फल लाने वाले बन जाएं, मसीह के लिए कार्य करने वाले बन जाएं, मसीह के अनुसार जीवन जीने वाले हम सेवक लोग बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लालच किसी तरीके का भी हो सकता है, सेवकाई में भी लालच आ सकता है, सेवक के मन में लालच आ सकता है, पैसे का लालच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शैतान कुछ भी करके एक सेवक को उसके निशाने से दूर ले जा सकता है। वो पैसे का लालच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यीशु मसीह को भी शैतान ने क्या बोला था? अगर तू मेरे सामने एक बार झुक जाएगा, तो मैं दुनिया की सभी जो बादशाही जो भी है, मैं तेरे को वो दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। हम ऐसा जीवन तब जी सकेंगे यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, अगर हम उसके अनुसार चलेंगे, दुआ में जाएंगे, खुदा की आवाज को सुनेंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे, तब ही हम उसमें स्थिर रह सकेंगे। हालेलुया। इस करके गेहाजी की तरह हमको लालच में नहीं जाना, और खुदा के इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए हमको अपने आगे बढ़ना है। हालेलुया। दूसरे तिमोथियुस में हम पढ़ेंगे, पहले तिमोथियुस में 6 नंबर अध्याय 5 नंबर वचन से पढ़ेंगे हम। यहां बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति का जीवन जीने को क्या समझते हैं? ये एक बिजनेस है ना। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हाँ, भक्ति कमाई का द्वार वो समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कौन लोग बात करते हैं? जो खुदा के कलाम को नहीं समझते, जो दोष लगाने वाले हैं। 6 नंबर में क्या लिखा है? परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेके जा सकते हैं।
और यदि हमारे पास खाने को और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ, वचन में लिखा है, अगर संतोष से भक्ति करते हैं तो वे कमाई है उसमें, मतलब आत्मिक रीति से उसमें बढ़ना है। हालेलुया। आत्मिक रीति से उसमें बढ़ना है। अगर संतोष से भक्ति करेंगे तो वो कमाई का द्वार है। पर कुछ लोग, कुछ सेवक लोग क्या समझते हैं कि सेवकाई करना कमाई का द्वार है, बिजनेस है। सेवकाई वो बिजनेस नहीं है। हालेलुया। सेवकाई करना कोई बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस के हिसाब से हम उसको लेते हैं तो फिर जो काम हम पहले करते थे वही करना ठीक है। हालेलुया। जैसे मैं पहले वेल्डिंग का काम करता था, गेट ग्रिल शटर जो सारा कुछ शेड वगैरह, बीच बीच में अब भी करते थे, लेकिन अब नहीं है। अगर हमने पैसा कमाना है तो संसार में जा सकते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, फिर भूखे हैं प्यासे हैं जैसे भी हैं, फिर खुदा के अनुसार हमने चलना है, खुदा के अनुसार जीवन जीना है। खुदाबंद भूखों नहीं मरने देगा। हालेलुया। एक दिन की बात है, मेरे को याद आ गया, मेरे को ना कुछ पैसों की जरूरत थी। अभी मैंने जाना है, पैसे मुझे चाहिए, कम से कम 3-4 हजार 5 हजार मेरे को चाहिए। पैसा एक भी नहीं है पास में, पैसा मेरे नहीं है। तो अब क्या करें? मैं सोच रहा हूँ, 8 बज गया 9 बज गया, है ना, तो पैसे की जरूरत है। तो क्या हुआ कि मेरे को पड़ोसी ने बोला, एक ना गोलक किसी ने मेरे को दी संडे के दिन, मान लो 3-4 दिन पहले। ये गोलक मेरे को किसी ने दी कि मैंने उसके ऊपर प्रेयर की और रख दिया। तो परमेश्वर ने मेरे को याद दिलाया, उसको उसको खोल। तो जब मैं उसको खोला, उसमें मैंने देखा छोटे बड़े सभी नोट नोट निकाल रहा हूँ नोट आ रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। नोट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूं, जितनी मेरे को जरूरत थी उससे भी कहीं ज्यादा। हालेलुया। मेरी जरूरत पूरे होने के बाद भी वो पैसा मेरे पास बच गया। हालेलुया। मैं सोच रहा था कहां से पैसा आएगा, और मेरे को बहुत जरूरी है। खुदा ने तो पहले ही इंतजाम कर रखा था मेरे लिए, लेकिन मेरे को पता नहीं था। हालेलुया। मतलब कहने का, जब हम खुदा के अनुसार जीवन जिएंगे, वो समय समय पे हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कौओं को द्वारा एलिया को खाना दे सकता है, वही परमेश्वर आपका है। हालेलुया। अद्भुत है परमेश्वर, अद्भुत है। उसके अनुसार जीवन जिएंगे, उसके अनुसार काम करेंगे तो प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कमाई का साधन सेवकाई को हमने नहीं समझना है। सेवकाई कोई बिजनेस नहीं है। बाइबल बताती है कि जो एक सेवक है ना, वो सुसमाचार से ही उस अपना गुजारा करे। जो भी कुछ मिलता है उससे वो अपना गुजारा करे, उसके उससे द्वारा अपना जो भी परिवार चलाए। हालेलुया। पर खुदाबंद हमको कम नहीं रहने देगा, भूखे नहीं रहने देगा, प्यासे नहीं रहने देगा। हमारे लिए सब अच्छा जो भी है इंतजाम परमेश्वर करता जाएगा। और जो काम हमको दिया परमेश्वर ने, उसको हमने पूरा करना है। जो बुलाहट मिली है हमको, उसके अनुसार जीवन जीना हमने। पहला पतरस उसका 5 नंबर अध्याय उसका 2 और 3 वचन में, वहां भी संत पतरस कह रहे हैं कि जो सेवकाई का कार्य आप कर रहे हैं, उसको
दुख से नहीं, खुशी से पूरा करें। और जो आपको काम दिया गया है, जो भेड़ें आपको दी गई हैं, उस झुंड की रखवाली कैसे करनी है? पढ़ दिए, एक बार पढ़ दें। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हालेलुया। यहाँ वचन में बताया गया है कि जो झुंड है, कलीसिया है, आपको लोग दिए गए हैं, उनकी रखवाली करो। एक सेवक का काम क्या है? रखवाली करना। जैसे दाऊद भेड़ें चरा रहा था, एक भालू आया, बच्चा उठा के ले गया, और उसने क्या किया? उससे छुड़ाया, उससे छुड़ाया। शेर आया, उससे भी छुड़ाया। यही काम कई बार शैतान करता है, कलीसिया में से कुछ लोगों को वो ले लेता है। हम सोचते हैं वो कलीसिया में नहीं आया, वो परिवार नहीं आ रहा, है ना? कई बार मन में ऐसा होता है, चलो छोड़ो। ऐसा नहीं है, उसके पास जाना है, उसके लिए प्रेयर करना है, उसको शैतान के हाथ में से छुड़ा कर लेके आना है। रखवाली करना यही कार्य है, कलीसिया की रखवाली करना। और वचन में बताया गया है, उनके ऊपर अधिकार ना जताओ। उनके लिए क्या बनना है? आदर्श बनना है, नमूने बनना है उनके लिए। जब आपका जीवन लोग देखेंगे, उसी के अनुसार वो भी ढल जाएंगे, उसी के अनुसार वो भी चलना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद ने हमको एक काम दिया है, उसके अनुसार हमको जीवन जीना है। हिजकिय्याह नबी की बुक में एक वचन पढ़ेंगे हम। हिजकिय्याह नबी, उसका 34 नंबर अध्याय, उसका 4 नंबर वचन। हिजकिय्याह की तुमने बीमारों को बलवान ना किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घाव को बांधा, न निकाली हुई को फेर लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। हाँ, यहां परमेश्वर डांट रहे हैं सेवक लोगों को। आपने कमजोरों को बल नहीं दिया, आपने उनके घावों को नहीं बांधा, उनको अच्छा नहीं किया, उनकी सुधि नहीं ली। मतलब भेड़ों की बात कर रहा है यहां परमेश्वर, कलीसिया की बात कर रहा है। कलीसिया के जीवन में, लोगों में जो परेशानियां हैं, उनको बड़े ध्यान से आपको सुनना है, धीरज रख करके, धीरज धर करके, हलीमता से उनकी बात सुन करके उनके लिए प्रेयर करना है। दुखी मन है, उनको शांत करने के लिए खुदा के कलाम से उनको तसल्ली देना है। हालेलुया। अगर कोई चर्च में नहीं आ रहा है, उनके पास जाना है, उनके लिए दुआ करना है, उनकी बात को सुनना है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या तंगी है, क्या मुश्किल है, उसकी बात के अनुसार सुन करके, दुआ करके, वचन से उनको दृढ़ करके, उनको स्थिर करके फिर कलीसिया में लेके आना है। हालेलुया। जब कुछ लोगों ने ये काम नहीं किया, तो परमेश्वर आगे 16 आयत में बताते हैं कि मैं उनको लेके आऊंगा, मैं उनके ऊपर पट्टी बांधूंगा, मैं उनको अच्छा करूंगा, मैं कमजोरों को बल दूंगा। हालेलुया। यही काम है एक रखवाले का, जिम्मेदारी जो हमको दी गई है। तो उनको तकड़ा करना, उनको मजबूत करना, स्थिर करना, दृढ़ करना एक सेवक का कार्य है। हालेलुया। इसलिए उसमें हम बढ़ते जाएं, चलते जाएं, लगे रहें, ताकि हम परमेश्वर से प्रतिफल पाएं। हालेलुया। अगर संसार की ओर देखेंगे तो हम सेवकाई नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यीशु की ओर देखते रहना है। जैसे इब्रानियों 12:2 में लिखा ना, यीशु की ओर ताकते जाएं, देखते जाएं, यीशु के अनुसार जीवन जीते जाएं, यीशु के अनुसार ढलते जाएं, यीशु के जैसा बनते जाएं।
हालेलुया, हालेलुया। तब हम सेवकाई में स्थिर हो पाएंगे, तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी सकेंगे। कलाम में से सीख के एक वचन पढ़ के हम समाप्ति करेंगे। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण उसका 33 नंबर अध्याय, उसका 3 नंबर वचन। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है हाँ, और सब परमेश्वर जो है वो देश देश के लोगों से प्रेम करता है, हर एक से बराबर प्रेम करता है। और सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। सब पवित्र लोग जितने संत जन हैं प्रभु यहोवा के हाथ में है। जैसे यीशु मसीह के हाथ में सात सात तारे देखे गए ना प्रकाशित वाक्य में, 7 तारे 7 दूत, मतलब वो सेवकों की बात की गई है। यहाँ लिखा है जितने पवित्र जन हैं वो तेरे हाथ में है। वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं। वो तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? सीखने के लिए, कलाम को सीखने के लिए। जैसे मरियम ने यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके वचन को सीखा, सुना, वो तेरे चरणों में बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने भी खुदा के वचनों में से लाभ उठाना है। लाभ कैसे उठाएंगे? जब वचन को पढ़ेंगे, खुदा के निकट जाएंगे, परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, खुदा से सीखेंगे, लाभ उठाएंगे, अपने जीवन में स्थिर होते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए जो बुलाहट परमेश्वर ने हमें दी है, उस बुलाहट को हम पहचाने, बुलाहट के अनुसार कार्य करें, यीशु की आवाज को सुने, उसके अनुसार जीवन जिए, उसी के अनुसार सेवकाई करें। जो दर्शन हमको मिला है, जो निशाना हमने रखा है, उसके अनुसार हमको जीवन जीना है। हालेलुया। संत पौलुस तीमुथियुस को कह रहे हैं कि जो संसार का ज्ञान है ना, उसमें बहुत से लोग फंस गए हैं और अपने निशाने से चूक गए हैं, नीचा विश्वास से भी वो फिर गए हैं, पीछे हट गए हैं। हालेलुया। तो शैतान बहुत से ऐसे कार्य कर रहा है कि एक सेवक अपने निशाने से चूक जाए। यदि ऐसा होगा तो हम यीशु मसीह से प्रतिफल नहीं पा सकेंगे। फिर यीशु मसीह कहेगा मैं तेरे को नहीं जानता। हालेलुया। हमको ऐसा बनना है कि जब हम यीशु के सामने जाएं, यीशु मसीह हमको कहे आओ मेरे प्यारे दास, आओ मेरे खरे दास, वफादार सेवक। हालेलुया। ऐसे हमको बनना है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा की अग्नि से भर के अपनी सेवकाई के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और खुदावन में हम सब बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको